Hello everyone, I hope you're fine. I hope you will find my video well. Guys, today we are going to talk about character sketch of Dr. Faustus, a little bit critical analysis of Dr. Faustus, and we will talk about in this video Dr. Faustus is arrogant, pompous, and a devil worshipper. Yet somehow we like him. What has Marlowe done to him likable? Uh, yeah, this is a kind of question that Dr. Faustus is arrogant, pompous, and a devil worshipper, yet somehow we like him. What has Marlowe done to him like Abel? This is a question. Yeah, exactly, this is a question. But this question is from character sketch of Dr. Faustus. You know, guys, in exams, examiner cannot ask you the question directly, like in a very easy way. You have to write character sketch of Dr. Faustus. No. Examiner always ask differently difficult question from students. So, this is a kind of statement of question, and this is from character sketch. Okay, I hope you're understanding what I'm talking about. Okay, let's start before wasting your time. Faustus and one thing more. In this video, we will talk about positive characteristics of Dr. Faustus and negative characteristics of Dr. Faustus. Basically, we will talk about character sketch of Dr. Faustus. Dr. Faustus is a protagonist and tragic hero of Marlowe's play. He is at the center of the play. Dr. Faustus is a complex, confused, and tragic protagonist whose extreme intelligence brought onto him both glory and doom. It brought him glory because his wit and brilliance made him famous and respected among his peers and in academia, even in the circle of magicians that he wanted to enter. But it brought him doom because his ego got too big for his own good and led him to a stubborn battle against the conventions of the time. Marlowe presents the protagonist as a representative of morality of Elizabethan age, just like Icarus attempted as to mount above his reach. Icarus' flight is one of the most famous Greek myths. The story tells of a young man who attempts to fly too close to the sun with wings made of wax and feathers. The heat from the sun melts the wax, and Icarus fell down in the river. गाइस, आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ ना, ये इंग्लिश को छोड़ के देखें, जो फोस्टस है ना, ये हीरो है, ठीक है, ट्रेजिक हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है मार्लो के प्ले का। डॉक्टर फोस्टस को क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था ना, और ये उसका मरकज़ी किरदार भी है। डॉक्टर फोस्टस जो है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूज्ड और ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट है, जिसकी बहुत ज़्यादा जहानत ने उसको उसको ग्लोरी भी दी है, शान शौकत भी दी है और डूम भी दिया है, ठीक है। डूम का मतलब है कि गम भी बोल सकते हैं, दुख भी बोल सकते हैं, मायूसी भी बोल सकते हैं। अब जो इसकी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, वो उसने इसको इसके रिश्तेदारों में, सर्कल ऑफ मैजिशियंस में बहुत ज़्यादा फेमस किया है, रिस्पेक्ट दी है। लेकिन इसकी डूम ने दूसरी जानिब जो है इसकी जो एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है, वो इसके लिए डूम का बायस भी बनी है। कैसे बनी है? क्योंकि इसकी ईगो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो खुद जो है इसके अच्छाई के रास्ते में हाइल हो रही है। कैसे हो रही है कि ये जो है तौबा नहीं करता, इसकी ईगो इतनी ज़्यादा हो जाती है, इसको जगह-जगह पे इशारे मिलते हैं कि तौबा कर लो, ये तौबा नहीं करता। एंड लेड हिम टू अ स्टबर्न बैटल अगेंस्ट द कन्वेंशंस ऑफ द टाइम। और ये इसको इतनी ज़्यादा एक ज़िद्दी जंग जो है ना की तरफ इसको ले जाती हैं। मार्लो जो है वो प्रोटैगनिस्ट को जो है प्रेजेंट कर रहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोरालिटी ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज की मोरालिटी के तौर पे इसको प्रेजेंट कर रहा है। फोस्टस को जो किरदार है उसको ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक मिथ है, आइकार्स फ्लाइट। आइकार्स एक बंदा है और उसकी फ़्लाइट यानी उसकी उड़ान से इसको मैच किया गया है कि भाई फोस्टस ने भी आइकार्स की तरह उड़ान परवाज़ भरी है। अब आइकार्स जो है एक नौजवान बंदा है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, जिसको ऊंचा उड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जिसको उड़ने का बहुत शौक़ है। तो वो तेज़ धूप के अंदर ना पर बनाता है, किससे? मोम से और परों से पर बना के ना उड़ने की कोशिश करता है। तो धूप इतनी तेज़ होती है कि धूप से उसकी जो वैक्स है, मोम है, वो पिघल जाती है और वो समंदर के अंदर नीचे गिरता है और समंदर में डूब के
मर जाता है। फोस्टस इस अब ये आई कार्स फ्लाइट वाली लाइन यहाँ पे एंड हो रही है। नेक्स्ट ये वाली लाइन स्टार्ट हो रही है जो इस पैराग्राफ का हिस्सा है, उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि जी, इफ़ वी कंसीडर मोरालिटी हीरोज एज अ सेल्फ एफिकेसी ह्यूमन बींग्स देन फोस्टर्स इज सुपर ह्यूमन इन हिज एम्बिशंस and Faustus is superhuman in his ambitions and he wished his power to be unlimited as he says. Faustus जो है, अगर हम सेल्फ एफिकेसी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो फोस्टस जो है सुपर ह्यूमन है अपने एम्बिशंस के अंदर, अपने एम के अंदर। इसकी ख्वाहिश है कि इसके पास लामहदूद ताकत हो। ये इसका एक डायलॉग है जो ये कहता है, all things that move between the quiet poles shall be at my command. Emperors and kings are but obeyed their several provinces, nor can they raise their wind or rend the clouds. तो ये कहते हैं कि जितनी चीज़ें क्वाइट पोल्स के दरमियान मूव करी हैं वो मेरे हुक्म की पाबंद हो जाएं। जितने बादशाह हैं, जितने भी रियासतें हैं, वो अपने सेवरल प्रोविंसेस को ओबे करते हैं, लेकिन जो हवा और बादल हैं वो भी मेरे काबू में आ जाएं। He is entirely dissatisfied with what he has learned at the university. ये उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है इसने यूनिवर्सिटी में क्या कुछ पढ़ा है। मतलब इसके अंदर नॉलेज है, लस्ट का नॉलेज है, और ही इज़ वेल वर्स्ड इन थियोलॉजी। थियोलॉजी बोलते हैं दीनियात को, इन मेडिसन, इन लॉ, इन फिलोसफी, लॉजिक, एंड द फेम ऑफ हिज स्कॉलरशिप हैज सेपरेट फार एंड वाइड। ही इज़ एवर अ स्टूडेंट एंड अ थिंकर। ये हमेशा से एक स्टूडेंट और थिंकर है। ही वॉन्ट्स, अब ये जो लाइन मैंने यहाँ लगाई है ना, ये नेक्स्ट पैराग्राफ की है, ये पैराग्राफ यहाँ तक एंड होगा। He wants all ambiguities to be resolved and all strange philosophies explained. Infinite aspiration, inordinate ambition, and an insatiable thirst for knowledge, which he seeks to satisfy even at the cost of his soul. इसको इतनी ज़्यादा नॉलेज की प्यास है, इल्म की प्यास है कि इसने जो डेवल्स हैं उनके साथ अपनी सोल का सौदा कर लिया है, क्योंकि only magic can perform what he longs for, and so he enters into the terrible contract with the devil, knowing full well that eternal dimension would be the consequence. लेकिन ये कहते हैं कि जो जादू है उसको उसको परफॉर्म करने से ही इसकी प्यास बुझ सकती है, और इसने इवन के ये सब जानता है कि भाई आखिर पे मुझे जहन्नुम में जाना पड़ेगा नतीजे के तौर पे, उसके बावजूद इसने डेविल से सौदा कर लिया है। और ये जो है आसमान सब जगह पे घूमता है, पूरी कायनात के अंदर जाता है, हर जगह यूनिवर्स के अंदर जाता है, सितारा, चाँद, हर जगह पे ये जाता है। और इसके एक मुझे याद है कि जो है ना एक मलका, एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं नहीं बोल रही, एक वो मेरे ख्याल में क्वीन है या कौन सी है, तो वो इसको कहती है कि सर्दियों के अंदर ना मुझे अंगूर खाने हैं, तो ये अंगूर उसको मंगवा के देता है। ठीक है, तो वो मलका कहती है कि भाई यहाँ पे तो सर्दी चल रही है, तुमने ये अंगूर कहाँ से मंगवाए हैं? तो इसे कहते हैं कि चूँकि दुनिया गोल है तो आधे के ऊपर सर्दी और आधे पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है कहीं पे गर्मी है, तो ये मैंने गर्म इलाके से तुम्हारे लिए ग्रेप्स मंगवाए हैं। ठीक है। For the full enjoyment of knowledge, power, and omnipotence to be a god on earth, he does not hesitate to barter away his soul to the devil. तो ये अपने नॉलेज को, अपनी ताकत को, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना चाहता है, और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है इस मकसद के लिए ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू बी अ गॉड ऑन अर्थ, ये दुनिया के ऊपर खुदा बनना चाहता है। तो ये अपनी जो रूह है उसको डेविल्स के साथ सौदा करने से बिल्कुल नहीं घबराता। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाउ इन फोस्टर्स द स्कॉलर नेवर डिसअपियर्स इन द मैजिशियन इन द लास्ट सीन when the two scholars take leave of him. Faustus retains about him an atmosphere of learning, of refinement, of scholarly urbanity. Faustus is made of the stuff of which heroes are made. He has an unbridled passion for knowledge. अनब्रिडल्ड का मतलब होता है कि बेलगाम पैशन है इसके पास नॉलेज के लिए, एंड ये उस स्टफ़ का बना है जिसका हीरोज़ को होना चाहिए। इन्फिनाइट और लिमिटलेस डिज़ायर फॉर द अनअटेनेबल, कि इसके पास लिमिटलेस कोई हद नहीं है, इसकी एक डिज़ायर है कि ये नॉलेज को अचीव करे, पावर को अचीव करे। अ स्पिरिट ऑफ रैकलेस एडवेंचर एंड अ ट्रीमेंडस कॉन्फिडेंस इन हिज ओन विल, और अपनी ऑन हिज विल ऑन हिज इन हिज ओन विल एंड सेपरेट, अपने ऊपर इसको बहुत ज़्यादा खुद एतमादी है, भरोसा है। He has dignity, tenacity, patience, profundity, and a vein of unsuspected humanity and tenderness. इसके पास शान है, साबित कदमी है, टेनासिटी बोलते हैं साबित कदमी को, पेशेंस सब्र को, प्रोफेंडिटी गहराई है,
and a win of unsuspected humanity and tenderness. But all these are thrown into the background because of the horror of the course he pursues in order to quench his thirst of knowledge. ये इसकी तमाम अच्छाइयाँ ना पीछे रह जाती हैं, बैकग्राउंड में रह जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि इसने डेवल्स के साथ सौदा किया और गॉड को नाराज़ किया है और दुनिया के ऊपर गॉड बनना चाहता है. To quench his thirst of knowledge, he is hungry and eager to know everything. His main goal is right, but he chooses wrong way to achieve his right goal. At last, he realizes his mistake, um, mm, but at last he wants to seek and he seeks God's mercy to rescue him from the devil. और जब वक्त आता है कि डेवल्स इसकी रूह को ले जाएं हेल में, तो इसको याद आता है कि मैं खुदा से माफ़ी मांग लूँ, उससे रहम मांगूँ. Thus, Dr. Faustus was a man who was highly ambitious and full of aspirations and desires. However, it was this that led him to the path of degradation. ये इसकी अच्छाई भी है, एक अच्छी बात भी है कि एम्बिशियस है, फुल ऑफ एस्पिरेशन है, डिज़ायर है, लेकिन एक तरीके से ये इसको पाथ ऑफ डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन की तरफ भी इसको ले जाती है. O.P. Broadbent says, Foster's passion for knowledge and power is in itself a virtue. कि इसका पैशन, इसका नॉलेज के लिए पैशन, पावर के लिए पैशन जो है अच्छा है, खुद में एक अच्छा है, बट डाइवर्टेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ गॉड इट थ्रेटन्स टू बिकम टोटली नेगेटिव एंड सेल्फ डिस्ट्रॉइंग. लेकिन इसकी इस एम्बिशियस इसके इस एम ने इसको डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है ना लेड किया है. गाइज, ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, बेसिकली ये करेक्टर स्केच है उसका. इसके अंदर डॉक्टर फोस्टर्स के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं. और ये जो मैंने आपको स्टार्ट में क्वेश्चन बताया ना, ये करेक्टर स्केच से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वो आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि डॉक्टर फोस्टर्स एरोगेंट हैं, पोम्पस हैं, डेवल वर्शिपर हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें उसके किरदार की अच्छी लगती है, या मार्लो ने उसमें क्या ऐसी चीज़ उसके किरदार में डाल दी कि वो हमें अच्छा लगता है. और ये इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है. और ये करेक्टर स्केच है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, you will like this video, and thanks for watching. And if you are a new one on my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, and if you like this, please like it and subscribe, and subscribe it and share it, etc. Thank you for watching.